اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان. وہ رحمان ہے جس نے جو ہے وہ قرآن کا علم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. خلق الانسان، تو اللہ تعالیٰ نے بہترین چیز بنائی ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز میں ذرا جتنا بھی جو ہے نقص نہیں ہے. تو اس لیے جو اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی رحمتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان میں ایک ذرہ جتنا بھی نقص نہیں ہے. نقص ہم میں ہے، ہم نے پیدا کیے نقص جو ہے، حرص و ہوس نے ہمارے اندر جو ہے وہ نقص پیدا کیے ہوئے ہیں. ہمارے اندر تباہ نے نقص پیدا کیے ہوئے، شیطان نے نقص پیدا کیے ہوئے ہیں. لیکن وہ خالق جو ہے، وہ مالک جو ہے، وہ انتہائی زیادہ بہترین کریٹو ہے. اس سے بہترین کریٹو کوئی نہیں دنیا میں ہے. وہ بہترین خالق ہے، وہ بہترین مالک ہے. اس نے ہر انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے. تو انسان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر ہر چیز ایکوریسی 100% سے بھی اوپر ہے. اتنی ایکوریسی جس چیز میں ہو تو اس میں جو ہے کیسے فرق آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو نظام بنائے ہیں، ایک آٹونامک نروس سسٹم ہے اور ایک جو ہے وہ پیریفرل نروس سسٹم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے. ہمارے بس کی کچھ باتیں ہیں، کچھ ہمارے بس کی باتیں نہیں ہیں. ہماری بس کی یہ ہے کہ ہم دو ٹانگوں کے بغیر جو ہے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. ایک ٹانگ پہ ہم کھڑے ہو سکتے، ہماری پاور صرف اتنی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تھوڑی سی پاور بھی دی ہوئی ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ہے کچھ اختیارات ہے، ایک مالج کے کچھ اختیارات ہیں. تو آج ہمارا ٹاپک بیسیکلی پروسٹیٹ ہے. پروسٹیٹ کیوں بڑھتا ہے، کہاں ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، اور اس کو گدا قدامیہ کہتے ہیں. تو گدا قدامیہ جو ہے میرے دوست کو جانتے ہیں کہ یہ کہاں پہ ہوتا ہے. تو اس کی اناٹومی، فزیولوجی اور اس کا کیا فنکشن ہے، اور یہ بڑھ کیوں جاتا ہے بڑی عمر میں آ کے ہمارے جیسے لوگوں کو جو کہ 60 سال سے اوپر، 55 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں. ان کے اندر کیوں بڑھتا ہے، ڈرائیوروں کے اندر کیوں بڑھ جاتا ہے، جو لوگ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں ان کے اندر کیوں بڑھ جاتا ہے. تو یہ لوگ ہم آج تھوڑا سا اس کو جو ہے ڈسکس کریں گے. تو پراسٹیٹ کا کینسر بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اور اسی طریقہ سے جو ہے ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے وہ انفارمیٹک بھی جانیں گے، اور اس کا طبی علاج بھی جو ہے وہ ہم جانیں گے. تو اس طریقہ سے جو ہے بیسیکلی طور پر یہ مردوں میں پراسٹیٹ گلینڈ جو ہے یہ ہوتا ہے. یہ جو ہے یہ مثانہ، یعنی کہ جس کو ہم یوٹر کہتے ہیں یا سکروٹم کہتے ہیں، اور اینس جو ہے، ان دونوں کے درمیان جو ہماری سین ہے، درمیان والا حصہ ہے نومنٹ بون کے اندر، یہ وہاں پہ جو ہے ایک اخروٹ نما جو ہے ایک گدا جو ہے واقع ہے. نیچرل طور پہ جو ہے یہ گلینڈ، اس کو جو ہے گدا یا گلینڈ کہتے ہیں. گدا کے تو اس کو جو ہے پروسٹیٹ گلینڈ بھی کہتے ہیں. تو بیسیکلی طور پر یہ مردانہ تولیدی اعضاء کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. جو میں دریا کی بات کرتا ہوں، اس کی رطوبت جو ہے وہ دریا ہوتی ہے. مطلب مچھلیوں کو ہم روک دیتے ہیں تو دریا بہتر رہتا ہے. یہ دریا وہ رطوبت جو اس میں سے نکلتی ہے وہ ایک دریا ہے، جس کی وجہ سے جب ایجیکولیشن ہوتی ہے تو اس وقت یہ اس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے سپرم کے ساتھ مل کر جو ہے یہ اس کی رطوبت جو ہے باہر خارج ہوتی ہے ایجیکولیشن کے اندر. تو یہ نیچرلی طور پر جو ہے اصل میں پیشاب والی نالی یعنی کہ یوریتھر، اور جو ہے یہ اینس کے بالکل درمیان میں ایک جو ہے وہ اخروٹ نما جو ہے یہ گدا ہوتا ہے. بیسیکلی طور پر جب بندہ بچہ ہوتا ہے تو اس کا وزن تھوڑا سا کم ہوتا ہے. 20 جب بندہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کا جو وزن ہے وہ 20 سے 25 گرام، زیادہ سے زیادہ 26 یا 27 گرام ہوتا ہے. یہ نارمل اس کا ویٹ ہے. تو بعض لوگوں میں 1-2 جو ہے گرام ویری کر دیتا ہے. بچپن میں اس کا ویٹ جو ہے یہ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ 8 سے 10 گرام اور 15 گرام جو بڑا ہوتا ہے یہ پروسٹیٹ جو بڑا ہوتا جاتا ہے. تو اس طریقہ سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی. یہ نیچرلی طور پہ جو ہے وہ ہمارے جسم کے ساتھ ہی بڑھتا ہے. یہ دونوں طرف کنٹرول کرتا ہے. ایک طرف جو ہے وہ پیشاب کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی کہ یوریتھرا کو کنٹرول کر کے جو ہے پیشاب کی
जो आने के जो है वो कंट्रोल करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हमारी टूटी है, टूटी के अंदर वाशल होती है, स्पिंडल होता है। तो जैसे स्पिंडल काम करता है, जब वो घूमता है स्पिंडल, तो वो जो है वो पानी को आगे आने देता है। तो जो वाशर होती है उसके अंदर जो उसको कंट्रोल करके रखती है। तो जब वाशर खराब हो जाती है तो पानी टूटी से जो है वो कतरा कतरा बहना शुरू हो जाता है। या स्पिंडल खराब हो जाता है तो पानी जो है वो मुकम्मल तौर पे बहना शुरू हो जाता है, तो वो उसके टूटी के भी इख्तियार में नहीं रहता। इसी तरह पेशाब भी हमारे इख्तियार में, यूरिनेशन भी हमारे इख्तियार में नहीं रहती। ये बेसिकली तौर पर ये यूरिनेशन को कंट्रोल करता है। पीछे की तरफ ये एनएस को कंट्रोल करता है। एनएस की जो है वो उसके फिल्टर्स को कंट्रोल करता है। और उसके जो है ये और उसमें जो है ये दोनों तरफ जो है ये दरमियान में क्योंकि वाक़ होता है, मर्दों के अंदर होता है, लेकिन औरतों के अंदर ये बिल्कुल होता है, लेकिन इसको जो है वो पैरा यूरिथ्रा जो है वो ग्लैंड कहते हैं। औरतों में वो और तरह का होता है, मर्दों में और तरह का होता है। तो मर्दों में इसका और फंक्शन होता है और औरतों में भी इसका जो है वो दोनों जो है वो जब हमारी सेक्सुअल डिजायर पूरी हो रही होती है, एजैकुलेशन हो रही होती है, तो दोनों के अंदर जो है ये दोनों के अंदर जो है वो ग्लैंड अपनी रतूबात को खारिज करके ये जो है इसमें हार्मोन जो है खारिज होते हैं। बेसिकली जो इसमें हार्मोन खारिज होते हैं उसमें बड़े जबरदस्त किस्म की ये लहमियात होती हैं और प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन जो है बड़ी फायदेमंद होती है। तो मतलब अगर ये जब मतलब मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि मैंने मनसूबाबंदी के अंदर जो है ये काम किया है, तो वो जब प्रोटीन अंदर ही रह जाती है तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता कि उसमें जो है कोई खराबी वगैरह हो जाए या कोई वो, बल्कि जो है वो ताकत देती है। उस वक्त जो है हम लोगों को ये समझाया करते थे कि ये ताकत देती है। तो प्रोस्टेट जो है ये पेशाब की नाली के गिर्द वाक़ होता है। पेशाब की नाली और मसाना के दरमियान यानी कि स्क्रोटम यूरिथ्रा जिसको कहते हैं, इसको जो है कंट्रोल करता है। बेसिकली तौर पर नौजवान अफराद में प्रोस्टेट की जिसामत अखरोट के बराबर होती है। मैंने इसका वेट भी आपको बताया। ये जो है नौजवानों में इसका वेट जो है 20 से 25 ग्राम जो है नॉर्मल हम कवर करते हैं, और बच्चों में तो आपको बताया कि 8 से 10 ग्राम 15 ग्राम तक भी जो है या यंग एज जो है 15 साल की उम्र में हो जाता है, उनमें 15 साल जो है 15 ग्राम जो है वो इनका वेट जो है होता है। इसी तरीके से वो बढ़ता जाता है, दूध जो है वो इनकी नशोनुमा जो है होती जाती है। प्रोस्टेट एक जो है वो दूध नुमा रतूबत जो है वो पैदा करता है, जिसको मैंने अभी बताया। इसमें जो है वो जो जखीरा होती रहती है, जब भी डेकोरेशन होती है तो ये जो है स्पर्म के साथ जो है इसका खराब जो है वो होता है, जिसकी वजह से जो है वो इसके अंदर जो है ये स्पर्म जो है तैर के जो अपनी मंजिल मकसूद तक जो है वो पहुंच जाते हैं। तो ये मंजिल मकसूद तक जो है स्पर्म को पहुंचाने का जो है वो एक व्हीकल आप समझ लें कि व्हीकल है ये दिक्कत जो है। और जिस्म में जो है वो औरत के जिस्म के अंदर ये इसके अंदर इस मीडिया के अंदर जो इससे रतूबत खारिज होती है, ये मीडिया है जबरदस्त का किस्म का, और इसके अंदर ये जिंदा रहते हैं। मतलब हमारे जितने भी जो है वो कर्बे मनी होते हैं या उसको हम जो है ये स्पर्म कह लें, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। तो इस तरीके से ये वाले जो है औरतों में मैंने आपको बताया कि पैरा यूरिथ्रा ग्लैंड होता है। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे कि हमारा प्रोस्टेट काम करता है मर्दों का। हमारे इससे मकसद ये है कि मर्दों का, तो क्योंकि मैं भी एक मर्द हूँ इसलिए मैं हमारा कहा है, दोस्तों के लिए स्पेशली तौर पे जो है ना। तो ये असल में जो है ये दोनों तरफ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर जो है बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो औरतों में भी ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरह से जैसे ये मर्दों के अंदर से रतूबत खारिज होती है, हार्मोन खारिज होते हैं, इसी तरह से जो है इस ग्लैंड के अंदर औरतों में भी जो है ये पैरायूरिथ्रल ग्लैंड के अंदर से जो है जब जो है ये रतूबात जो है वो खारिज होती हैं, जिसकी वजह से जो है उसमें जो है लुत्फ या हैप्पीनेस और इसके बाद जो है वो में इजाफा हो जाता है और एंजॉय में जो है वो इजाफा हो जाता है इंटरकोर्स के दौरान। तो प्रोस्टेट जो है वो क्यों सूजता है, किस वजह से बढ़ जाता है, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनमें जो है खास तौर पे बूढ़ों के अंदर 50 साल के बाद जो है ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत से लोगों के अंदर जो है ये होती है। तो 55 साल और 60 साल से लेकर 80 साल तक ये होती है। तो बहुत से लोगों को प्रोस्टेट का कैंसर भी हो जाता है। तो मैंने जो मेरे पास केसेस जितने भी आए उनमें मैंने ये देखा कि जो ड्राइवर हजरात हैं, खास तौर पर जो रक्षा चलाते हैं,
ये पुंडी रक्षा जो चलाते हैं ना, या जो ये दूसरा वेस्पा रक्षा चलाते हैं, उसके इंजन के ऊपर वो बैठते हैं बेसिकली तौर पर। तो जब इंजन के ऊपर बैठते हैं तो उनको जो है नीचे गद्दी भी उनकी जो है टाइट होती है, जो सारा दिन बैठ के काम करते हैं, जैसे कि बैंक मुलाजिम है। तो बैंक मुलाजिम की मैं आपको बताता हूँ एक बात, तो वो उनको भी ये मतलब जो है प्रोस्टेट की सोच जो है वो ज्यादा हो जाती है। असल में अंदर से जो है वो हीट होती है, जो इंजन की हीट पड़ती है वहां पे जो है उनके अंदर जो है जो रक्षा वगैरह चलाते हैं, और जो सारा दिन बैठ के काम करते हैं, पूरे गद्दी के ऊपर जब वो इस जगह पे या घोड़ा वगैरह चलाते हैं, घोड़े और घोड़े की जीन नहीं डालते, ऐसे ही घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं, तो उनको भी ये सोच होने के चांसेस होते हैं। अक्सर जो अभी इसकी वजूहत का जो नहीं हुआ, लेकिन अक्सर जो आप 50 से 60 साल और 80 साल के दरमियान के जो है बहुत से लोगों के अंदर होते हैं। जो मेरे पास ज्यादा लोग हैं उनको जो है ये एक मेरे पास जो है वो ईद के दिन बैंक मुलाजम है, मैं ईद के दिन अपना क्लिनिक खोलता हूँ। मतलब ये होता है कि किसी का फायदा हो जाए इसलिए आता हूँ, बाकी तो घर में जो है ये सारा दिन तो ईद एंजॉय कर लेते हैं। ईद के दिन एक बैंक मुलाजम को यही प्रोस्टेट का मसला था, तो उनके घर में नवाज उनका नाम था, तो उनके घर में रात को चेक करने गया, उनको मैंने दवाइयाँ वगैरह दी, तो उन्होंने शफा दी। तो मुस्तकिल मेरे मरीज, उनके पूरे खानदान वाले जो है वो मुस्तकिल मेरे मरीज बन गए। इस तरीका से बहुत से मरीज जो है इस तरीका से भी जो है वो आपके जो है वो मुद्दा हो जाते हैं, और इस तरीका से जो है वो हो जाते हैं प्रोस्टेट के अंदर जो है। तो इस तरीका से बैंक मुलाजिम को अल्लाह ताला ने शफा दी, और इस तरीका से वो मेरे मुस्तकिल मरीज हो गए। तो प्रोस्टेट सोरिस जो है इसके अंदर जो है बेसिकली तौर पर सूजन होती है और जलन होती है पेशाब के दौरान, और जो है वो बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाती है, जिसको हम यूटीआई कहते हैं, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन भी हो जाती है। और बाद का ये आजकल का जो गर्मी का मौसम से पसीना ज्यादा आता है, तो पेशाब तेजाबी सूरत अख्तियार कर लेता है, उसमें भी यूटीआई होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा। जैसे तेजाब किसी जगह पे लग जाता है ना भी, तो वहां पे जख्म हो जाता है, इस तरह पेशाब नाली के अंदर, गुर्दों के अंदर, और उसके बाद जाएंगे सक्रोटम के अंदर, और आगे जो है जितने भी जो यूरिथ्रा है, और ये सब के अंदर जो है इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस गर्मियों में होते हैं, क्योंकि जो है पानी हम कम पीते हैं, पसीना आ जाता है, और पेशाब जो है वो एसिडिटी उसकी बढ़ जाती है, 5 से भी कम हो जाती है, 4 तक हो जाती है, 3 तक हो जाती है। मेरे दोस्तों को तो पता है ना भाई, जो 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 है वो पीएच कम होती जाती है तो तेजाबियत बढ़ती जाती है, और जो जो पीएच ज्यादा हो जाती है तो सासियत बढ़ती जाती है। सेवन जो है वो नॉर्मल पीएच होती है, मेरे दोस्तों को मुझसे ज्यादा पता होता है, इसलिए मैं जो है वो ज्यादा बयान नहीं करता इन चीजों को। तो इस तरह से जो है प्रोस्टेट ग्लैंड जो है हर उम्र के मर्दों में इसमें जो मुतासर हो जाते हैं। तो मैंने बताया कि रक्षा चलाने वाले बहुत ज्यादा लोग मुतासर होते हैं। प्रोस्टेट में क्या होता है, बेसिकली दर्द होता है, और इसको जो हम जब भी कोई मसला हो तो इसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। तो मेरे पास बहुत से केसेस आते रहते हैं। मेरे पास अभी एक सुल्तान नामी एक बाबा जी आए, तो उनको भी प्रोस्टेट जो है उनका, आप देखेंगे 26 ग्राम या 25 ग्राम नॉर्मल वेट है, तो उनका 89 ग्राम जो है प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था, इतना ज्यादा बढ़ा हुआ, और फिर भी उनको अल्लाह का शुक्र है तो पेशाब आ रहा है। वो साइकिल बहुत चलाते हैं, उनको 80 साल 85 साल की उम्र है, वो अभी गोजरा से मेरे पास सिविल अस्पताल जो है अलाइड 2 के अंदर साइकिल पे आते हैं, इतनी ज्यादा वो मतलब ये करते हैं, और साइकिल पे पूरे दिन फैसलाबाद जो है वो अपने सौदे सब लेके फिर शाम को अपने साइकिल पे घर जाते हैं। अंदाजा कर ले उनकी उम्र जो है वो क्या है और कैसे वो काम करते होंगे। तो उनको मैंने अल्लाह का शुक्र दवाई दी, तो उन्होंने मुझे कबूल भी किया कि मुझे अल्लाह का शुक्र है बहुत ज्यादा फायदा, और मुझे मुकम्मल तौर पर जो है वो रात को मैं उठता नहीं, मुकम्मल तौर पर जाइए मुझे फायदा हो गया है। तो इस तरीके से बहुत से मरीज जो है गुदा जो है इस सोच की जो है वो आते हैं। तो जिसमें बेसिकली तौर पर जो है दर्द होता है, तो इसको जो फौरी तौर पे हमें जो है इसका जो है इलाज करना चाहिए। सोच को कम करने के लिए बहुत सी अद्वियात है, हम जो है वो आबजन भी करवा लेते हैं कई मरीजों को जो है। तो मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, मतलब वो बड़ा शुगली वाक्य है, इसको टेस्ट करने का, इसको चेक करने का। तो असल में प्रोस्टेट को हम बड़ा हुआ, तो एक तो आजकल तो अल्ट्रासाउंड आ गई है ना, तो अल्ट्रासाउंड से पहले जो है ये हम जो है उसको एनएस से जो है उंगली डाल के जो है चेक करते थे। तो उसमें जो है प्रोस्टेट हमें जो है वो एनएस से जब उंगली डालते तो हमें जो है ये पता चल जाता था कि प्रोस्टेट बड़ा हुआ है। तो जैसे कि नवाब ऑफ काला बाग है,
तो वो हकीम साहब के किसी के पास गया तो उन्होंने जो है इनकार कर दिया कि मैं इनको चेक नहीं कर सकता हूँ, तो आप किसी और के पास ले जाए, क्योंकि उस वक्त यही तरीका था कि प्रोस्टेट को चेक करने का। आजकल तो अल्ट्रासाउंड में फौरी तौर में पता चल जाता है कि अल्ट्रासाउंड में बता देती है कि किस तरह से जो है प्रोस्टेट कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसका वेट जो है वो कितना है, और किस तरफ का बढ़ा हुआ है, एलिस की तरफ बढ़ा हुआ है या फिर ये स्क्रोटम की तरफ बढ़ा हुआ है। तो हमें जो बड़ी यूरिथ्रा के अंदर जो उसको जो चीनिंग आ रही है, तो हमें बड़ी आसानी से जो है वो अब बहुत आसानी है। अभी उस वक्त ये जो है हम एनएस के अंदर जो है वो उंगली डाल के उसको चेक किया करते थे। हमारे दौर की बात है, तो उसके बाद जो है ये बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी है। तो प्रोस्टेट का कैंसर भी हो जाता है बहुत से लोगों को। इट इज जो है वो इट लेके अभी जो है ये इसके बहुत से केसेस जो है वो मैंने रिकॉर्ड किए हैं कि 88 से लेके अभी तक मेरे पास प्रोस्टेट कैंसर के काफी केस जो है वो आए हैं, तो अल्लाह ने उनको शफा भी दी है। तो प्रोस्टेट की सोजिश की आम अलामत ये होती है कि बार बार पेशाब आता है, पेशाब मामूल से ज्यादा आता है, और जिसमें जो है वो पेशाब के अंदर जाग आती है, कमर में दर्द होता है, और स्क्रोटम यानी कि मसाना और जो है एनएस दोनों के दरमियान मकद, जिसको हम जो है उर्दू जुबान में कहते हैं, मेरे दोस्त जानते हैं मुझसे बेहतर, तो दोनों के दरमियान जो है ये होता है। तो इसलिए दोनों के दरमियान ये होता है, तो दोनों तरफ जाएगी, उधर पखाना जो है वो कब्ज के साथ आना शुरू हो जाता है, इधर पेशाब रुक जाता है, तो जिसकी वजह से जो है वो दूसरी तरफ जो है या वो इजैकुलेशन होती है, तो उस वक्त भी दर्द होता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो प्रोस्टेट ग्रोथ की जो है जब बढ़ जाता है, अमूमन 50 साल की उम्र में जो है ये इसके बढ़ने के जो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। मैंने अभी बताया कि इसकी पूरी वजूहत जो है नहीं पता चली, लेकिन जो इसकी वजूहत है सोजिश, इसकी जो अंदर जो बेसिक सोजिश की वजूहत है, जो लोग ज्यादा सफर करते हैं उनको भी ये हो जाती है, जो सारा दिन बैठे रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है। तो चलते चलते जो है मुझे एक और वाक्य भी याद आ गया, तो वो भी दोस्तों के गोशगुजार करता हूँ। हकीम जो है कैसे इसकी तशखीस करते हैं, तो जैसे कि एक बैल ने खाना छोड़ दिया, पेशाब आना बंद हो जाता, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि यूटीआई है, ये इस तरीका से कोई मसाला या गुर्दा के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से पेशाब। तो एक जो है वो बैल ने खाना खाना छोड़ दिया, तो डॉक्टरों ने जो है वो कोशिश की इसको जो है खाना खिलाया जाए, तो लेकिन वो खाना नहीं खा रहा था। तो उसके बाद जो है ये हमारे जैसे एक हकीम को बुलाया गया, तो उसने कहा कि ये उसको खाना खिलाता है ना, उसको जरा बुलाओ जरा। जब उसको बुलाया गया तो उसने जो है कहा कि तुम खाना खिलाते हो। उसने उसको पकड़ के ना हकीम साहब ने 2 जूते मारे। जब 2 जूते मारे तो बैल ने खाना खाना शुरू कर दिया। तो जब उसने जो है बैल ने खाना खाना शुरू कर दिया, तो वो सारे लोग हैरान है कि ये क्या हुआ, अभी हकीम साहब ने क्या किया। उसने कहा कि ये असल में जब काम कर रहा था बैल, उस वक्त जो है इसने उसको मारा, उसको गुस्सा आ गया, इसने खाना छोड़ दिया। तो अब मैंने इसको मारा तो उसने जो है ये खाना खाना शुरू कर दिया। तो इस तरीका से जो है बहुत से हुक्मा जो है वो इसी तरीके से एक अंदाजा लगा लेते हैं कि पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है, या कि हम जो है पेशाब के टेस्ट से भी इसका अंदाजा लगा लेते हैं। अब केजू जो है वो केजू भी किडनी यूरिन ब्लैडर अल्ट्रासाउंड लिख देते हैं, तो उससे हमें जो बड़ा अंदाजा हो जाता है। तो पुराने जमाने में हम जो है इसका वो बेरियम से भी और यूरोग्राफन से हम इसका जो एक्सरे करवाया करते थे, तो उससे जो है हमें वो कहाँ रुकावट है और कहाँ पे पेशाब वाली नाली के अंदर रुकावट है, तो हम इस तरीका से भी इसकी तशखीस जो है वो अपने जमाने में क्या करता है। अब तो जदीद दौर है जी, तो अब तो हमारे दोस्त जो है वो बहुत आगे हैं जी, तो जिसकी वजह से जो है अब वो जो है वो बात नहीं रही। तो प्रोस्टेट बढ़ने से जो है हमें ठीक मालूमात जो है वो अभी तक कोई जो है इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन हम अंदाजे से कह सकते हैं कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। तो कैंसर की वजह से जो है ये अगर बढ़ा हुआ, तो जिसकी वजह से यूरिटर के अंदर भी जो है हमें थोड़ा सा जो है पेशाब के अंदर परेशानी होती है। तो अक्सर जितने भी जो होता है, तो उसमें जो मरीज यही कहता है कि जी मेरी हाजत पूरी नहीं होती पेशाब की, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे पेशाब जो अभी मेरे मसाना के अंदर बाकी है। अब तो ये भी मतलब जो है किडनी हम इसका जो है वो किडनी का भी हम फंक्शन टेस्ट भी करवा लेते हैं, तो उसमें जो है वो हमें अंदाजा हो जाता है कि क्रिएटिनिन क्या है
اور یوریا کیا ہے اور یہ سارا کچھ ہم بڑے آسانی سے جو ہے وہ ایک اندازہ جو ہے ہمیں ہو جاتا ہے کہ اس طریقہ سے یہ جو ہے وہ چیزیں ہمارے اندر جو ہے موجود ہے. تو اس کے بعد جو ہے پیشاب کے لیے جو ہے وہ پروسٹیٹ کے اندر جو ہے جو بھی پرابلم ہو ہم اس کو جو ہے یہ نوٹ کر لیتے ہیں. پیشاب کے اندر قطرے بعد میں قطرے آتے ہیں. تو ایک میرے پاس بزرگ آئے تو انہوں نے پروسٹیٹ کا آپریشن, ہمارے تو بھائی جو ہے نا وہ ادھر سے آؤ بھی نکالو جو بھی ہے اپریٹ فوری اپریٹ جی, ابھی 2 منٹ کے بعد جو ہے آپ تو مطلب پیشاب بند تو ہو جائے گا. آپ یوٹرا پاس کریں اس کو جو ہے یہ ٹیوب پاس کریں تو پیشاب آنا شروع ہو جائے گا مسالے سے, ایسی کون سی بات ہے. تو پیچھے آپ مسالہ کے اندر جو ہے اوپر وہاں پہ جو ہے ٹیوب پاس کر لیں تو وہاں سے پیشاب آنا شروع ہو جائے گا, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو بھی نہیں اپریٹ فوری اپریٹ, ورنہ یہ ہو جائے گا جی بی یو این بڑھ جائے گا, تم جو ہے وہ سب ٹھیک ہے بی یو این بڑھ جائے گا, بلڈ یورین نارمیلٹی بڑھ جائے گی, کرٹنین بڑھ جائے گا, تو کم از کم جو ہے اس کو ادویات سے کوشش تو کرے گا بھائی. جب تک وہ بالکل ختم ادویات کا سلسلہ جو ہے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے آپ کو نہیں پتا تو آپ ریفر کر دیں حکیم کے پاس. بھائی صاحب اگر آپ کو نہیں اس چیز کا علم ہے کہ آپریشن کے بغیر بھی اس کا آپ علاج کر سکتے ہیں تو ریفر کر دیں. تو اس کو جو ہے آپ اس کو اب اس کا پروسٹیٹ نکال دیا بابا جی کا, 70 سال ان کی عمر تھی اس وقت میں زیادہ میں, تو اب ان کی یورینیشن اتنی زیادہ ہو رہی تھی, پیشاب رک نہیں رہا تھا ان کا, کنٹرول ہی نہیں تھا ان کا. تو بیچارے جو ہے نماز پڑھنے سے جو ہے وہ اثر آ چکے تھے. تو بھائی خدا کا خوف کرو, اتنی زیادہ اپریٹ نہ کرو. کسی کی اگر ضرورت ہے تو ضرور آپ جو ہے وہ, اگر بہت زیادہ ضرورت ہے صاف ظاہر ہے تو اس میں آپ تھوڑا بہت جو ہے اس کی ہیلپ کر دیں. اور بہت سے طریقے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ اس کو ایک اللہ کی بنائی ہوئی نعمت کو جو ہے وہ باہر نکال دیں اور اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے جو عجیب طریقے سے آپ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں. پیشاب زیادہ آنے سے کی وجہ سے جو ہے رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے. پیشاب شروع کرنے یا ختم کرنے سے کسی قسم کی دشواری محسوس ہوتی ہے بیسیکلی طور پر جو ہے. جب شروع کرتا ہے اس وقت بھی جو ہے پروسٹیٹ آگے کو بڑا ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے زور لگانا پڑتا ہے اس کو. تو جب اینڈ ہوتا ہے تو اس وقت بھی میں نے کہا مسالہ کے اندر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی جو ہے پیشاب کی دار کمزور ہوتی ہے, پوری جو ہے پیشاب کی دار نہیں نکلتی, جس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہو جاتا ہے جی. تو اس وجہ سے رات پہ خاص طور پر زیادہ پانی نہ پیے, تو مشروبات کا استعمال رات کو نہ کرے تو پیشاب جو ہے وہ کم آئے گا. تو پراسٹیٹ کا کینسر جو مردوں کے اندر بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے. یہ جو ہے عمر کا جو ہے تقریباً 60 سے لے کے جو 80 سال کی عمر میں زیادہ ہو جاتا ہے. پراسٹیٹ کا کینسر سے متاثر ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے, جس میں جو ہے وہ افریقی اور یورپین لوگ جو ہے اس سے بھی زیادہ متاثر ہوتے ہیں. یہ حبشی لوگ بھی اس میں بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. نسبت ایشیائی لوگوں کے جو ہے یہ لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں, اور جن کے خاندانی تاریخ کے اندر مطلب جو ہے یہ بھائی بہن کے اندر یا بھائیوں کے اندر یہ پروسٹیٹ کا کینسر ہو تو اس میں جو ہے وہ آگے ٹرانسفر ہونے کے بھی چانسز جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے خاندانی کے اندر جو ہے اگر پروسٹیٹ کا پرابلم ہو تو آپ اس کو فوری طور پہ اس کا جو ہے وہ حل کروائیں. تو کینسر کی بہت سی ادویات جو ہے وہ ہے, اور ہمارے ڈاکٹر اظہر سود صاحب نے بہت زیادہ جو ہے اس پہ کام کیا ہوا ہے. تو جس کی وجہ سے جو ہے پروسٹیٹ کینسر, برسٹ کینسر اور کیلون کینسر اور ان کے جتنے بھی کینسر ہمارے باڈی کے اندر ہے ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے ان کا جو ہے کام ہے. میرا بھی جو ہے لیور کینسر کے اوپر کام ہے, پروسٹیٹ کینسر کے اوپر نہیں میرا کام, لیکن کچھ ہمارے دوست جو ہے ان کا پروسٹیٹ کینسر کے اوپر جو ہے وہ کام ہے. تو اس میں جو ہے جیسے کہ آپ نے ابھی پہلے بات کی تو مسالہ پوری طور پہ خارج نہیں ہوتا, اس کی کچھ علامات ہیں. پیشاب میں خون بھی بعض اوقات آ جاتا ہے یو ٹی آئی ہونے کی وجہ سے, اور جو ہے پیشاب بار بار آتا ہے, اور جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ کینسر کی علامات اس کے اندر جو ہے نظر آتی ہیں کہ جب بھی کینسر ہوگا تو صاف ظاہر ہے کہ یہ پرابلم ہمیں جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. تو بہت زیادہ جو ہے آہستہ آہستہ ترقی کر کے جو ہے یہ مہلک صورت اختیار کر جاتا ہے, تو جس میں جو ہے وہ سستی بڑھ جاتی ہے, اور جسم کے اندر جو ہے یہ بہت زیادہ سرطان کے چانسز جو ہے وہ ہونے کے بھی ہو جاتے ہیں. پیشاب کرنے کے عمل میں ظاہرہ طور پر بہت زیادہ جو ہے تکلیف ہوتی ہے, اور پیشاب باہر نکالنے والی جو ہے وہ نالی کے اندر جو ہے بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے.
जिसकी वजह से पट्टों में शदीद खिंचाव होता है। और बाज़ औक़ात जो है जब बीजीएम बढ़ जाता है तो उसमें मरीज जो है वो कोमा की सूरत भी अख्तियार कर लेता है, पेशाब नहीं आ रहा, पूरा जिस्म सूज जाता है, डिम्बा का शिकार हो जाता है, खासतौर पर चेहरा सूज जाता है। अभी कल भी मेरे पास एक पेशेंट आया, तो उसमें जो प्रोस्टेट का जो है मसला था, तो उसमें जो है यूटीआई जो है क्रिएटिनिन भी बहुत बढ़ा हुआ था, तो और ब्लड यूरिया नॉर्मेलिटी भी उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती, और यूरिया भी उसका जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो उसको डाययूरेटिक वगैरह दी, तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो अब बेहतर है। तो आज भी उसके बेटा जो है दवाई लेके गया थोड़ी देर पहले मुझसे। तो इस तरीके से जो है खून के अंदर ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा होने के चांसेस जो है हो जाते हैं। तो प्रोस्टेट जब फूल जाता है यानी कि बढ़ जाता है, तो इसके अंदर जो है हमें पेशाब में रुकावट और जो है मजीद मसाना के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो तकलीफ और दर्द और इस किस्म की जो है वो दीगर अलामात जो है वो पाई जाती हैं। ये तकलीफ जो है बढ़कर जो है वो हड्डियों के अंदर भी चली जाती है, खास तौर पे जो है अनइम्यूनेट बोन के अंदर ये प्रॉब्लम जो है होने के चांसेस होते हैं। और इसी तरीके से जो है पेल्विक के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा दर्द और शदीद जो है वो दर्द होता है। और रीढ़ की हड्डी के अंदर भी शदीद दर्द होता है कमर में, यानी कि जब जो है वो पेशाब बैक रिफ्लेक्ट करता है, तो उसके अंदर जो है गुर्दों के अंदर जो है हाइड्रोनेफ्राइटिस और दीगर जो है वो प्रॉब्लम जो है होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और मरीज की बेहोशी के अंदर जो है वो जाने की जो है बहुत ज़्यादा कोमा के अंदर जाने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। तो प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया जो है जिसको जो है वो पीबीएच भी कहते हैं, तो मर्दों के उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है मुतासर होने की कलामत जो है वो पीबीएच जो है वो है। जब प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो मसाने में पेशाब का बहाव जो है वो रोकना वो रोक देता है। पीबीएच आम तौर पर जो है 10 में से 9 मर्दों को हो सकता है, ये 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी हो जाता है। पीबीएच जो है ज़्यादा उम्र के मर्दों को होता है, 40 साल से कम उम्र के मर्दों को बहुत कम होता है। खानदान के अंदर भी अगर किसी के अंदर ये मौजूद हो तो होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब मर्दों के खानदान के अफराद के अंदर ये प्रॉब्लम जो हो तो उसमें जो है ये होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। तो स्याह मर्दों में जो है वो सफ़ेद मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। हम चूँकि गंदगी रंग के हैं तो इसलिए हमें जो है 50% दोनों से फ़ायदा मिल जाता है कि हम जो है वो ना ही गोरे हैं ना काले हैं, तो इस तरीके से हमें गंदगी जो है इससे फ़ायदा मिल जाता है। तो प्रोस्टेट का एक जो हम टेस्ट मैंने आपको 4-5 चीज़ें बता दी हैं कि हम तो पुराने ज़माने में उंगली से टेस्ट कर एनएस के अंदर डाल के, तो बड़ा अजीब सा था। तो उसमें जो प्रोक्टोस्कोपी बाद लोग अब तो जदीद टेक्नोलॉजी है, तो उसमें प्रोक्टोस्कोपी भी करवाते हैं, उसमें एनएस को जो है वो चेक कर लेते हैं, तो उसके अंदर जो है ये और उसमें भी थोड़ा सा जो है पता चल जाता है। तो ये जो है ये खास टेस्ट है जिसको जो है पीएसए भी कहते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है इसका टेस्ट किया जाता है बेसिकली तौर पर। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के टिश्यू से खारिज होने वाले एक किस्म के जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन जो है जो भी मैंने बात की उसका टेस्ट है। बेसिकली तौर पर प्रोस्टेट ग्लैंड मर्दों को निकालने के नीचे जो है वो यूरिथ्रा के साथ जो है वो जो है वो पाया जाता है। तो बेसिकली तौर पर इस तरीके से जो है ये इसमें कोई रुकावट वगैरह हो तो इस तरीके से हम जो है नोट कर लेते हैं, जिससे मर्दों को पेशाब खुलकर नहीं आता, यहाँ तक के बाद उसका पेशाब जो है वो रुक जाता है। तो प्रोस्टेट का जब टेस्ट किया जाता है तो इसको एडवाइस कैसे करते हैं जी कि एडवाइस पीएसए जो है वो प्रोस्टेट एंटीजन टेस्ट, तो ये जो है इसका रिजल्ट जो है इस तरीके से हमें जो है कैंसर का पता भी चल जाता है कि कैंसर है कि नहीं है। तो इसमें जो है ये नो प्रोस्टेटिक डिसऑर्डर हो तो उसमें जो है ये 0.4 नैनोग्राम पर ml होता है। तो अगर ये जो है वो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो तो उसमें जो है 4 से लेके जो है 10 नैनोग्राम तक होता है पर ml होता है। प्रोस्टेट कैंसर हो तो 10 से लेके 20 नैनोग्राम तक ये होता है। तो इसके लिए जो हम बहुत सी मेडिसिन जो इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पे थोड़ थोड़ एक ऐसा जो है पौधा है, एक दरख्त है, उसका जो है वो ये जमीन के ऊपर होता है, कब्रिस्तान में आम तौर पे जो है मिल जाता है। तो इसका सफू बना के जो है आप लोग इस्तेमाल करवा सकते हैं।
اور ایک جو ہے وہ سیبل سیرولیٹا دوائی ہے، تو اس کا اردو نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو میں انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ سیشن میں جو ہے اس کا اردو نام سیبل سیرولیٹا کا بتاؤں گا۔ تو یہ جو ہے اس کا آپ نشاندہ بھی دے سکتے ہیں اور خرساندہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں، تو اس کا جو ہے وہ آپ مدر ٹینشن بھی استعمال کروا سکتے ہیں، یہ بہت ہی مفید ہے۔ تو پروسٹیٹ گلینڈ اس سے جو ہے بہت جلدی جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے، تو اس طریقہ سے ہم اس کو جو ہے یہ مزید کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے وہ تو پی ایس سے جس کا جو ہے وہ پازیٹیو ہو، مطلب اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کا پازیٹیو ہے اور آپ کا جو ہے یہ آپ کو پروسٹیٹ کینسر ہے، تو وہ بڑی آسانی سے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر اظہر سود صاحب نے بہت سے جو ہے وہ اس پہ کام کیا ہوا ہے، تو اس طریقہ سے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے یہ جو دے۔ تو میرے کوئی بھائی چاہتے تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا، اور میرے بھائیوں کا، اور خاص طور پہ میرے دوستوں کا بہت شکریہ سر۔